George Bernard Shaw said once, there is no love more sincere than the love of food. और क्यों ना हो, एक फूडी होने के नाते मैं भी यही बिलीव करता हूँ. Hello and a big welcome to all of you at a show जिसका नाम है कवान किचन मेट. मेरा नाम है कुणाल लांबा, I am from New York City और मैं वो कंटेस्टेंट हूँ जिसने ये नेशनल फूडी हंट जीता है और आज मैं आपके सामने इस रियलिटी शो पे हूँ. आज हम न्यू जर्सी में हैं. New Jersey is the most densely populated states in United States और यहाँ बहुत सारे देसी लोग भी रहते हैं. ये एडिसन एरिया है. आज बहुत ठंड है, बर्फ पड़ी हुई है, थोड़ी बरसात भी हुई है और खाने के मामले में ठंड हमेशा साथ देती है. जितनी ठंडी होगी उतना ही खाने में मजा भी आएगा. ये जो खूबसूरत घर आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर शिलवंती और डॉक्टर पुलिन पटेल का घर. दोनों व्यवसाय से मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके खाने पीने में न्यूट्रिशनल वैल्यूज और कैलोरी काउंट्स की भी चर्चा होती होगी. अब इनके घर जाके देखते हैं क्या पकाना है और इनको क्या खिलाना है. मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ठंड भी बहुत है, मजा आने वाला है. Hi, how are you? Hi, I am Kunal from Kawan Kitchen Mate. Nice to meet you. I'll show you. Hi, Shilwanti. That must be Dr. Patel. How are you doing? How are you? Very well, very well. All right, please come on in. It's really cold outside. बहुत ठंड है बाहर. Yes. And who are these little wonders? This is my little family. That's my son Pramil. Hey, Pramil, Daughter what's Keisha. up? Hey, And you my are? sister-in-law. Keisha. Hi, sister-in-law. Hi, How are you Shayla. doing? Great. So, Pramil and Keisha, why am I here today? Do you know? The cook. कौन सा खाना खाते हो आप? गुजराती खाना खाते हो, इंडियन खाना खाते हो, क्या खाते हो? इंडियन खाते हो? Does mommy make pizza too? Mexican, Italian. Max. Oh wow, you're okay. Great. So I have. Now you're making me nervous. Okay, I will try and make sure it's better or as good as hers. Alright. All right. So पहले थोड़ा जान पहचान कर लें आपके साथ डॉक्टर साहब. अब ये बताइए कि आप न्यू जर्सी में क्या कर रहे हैं? गुजरात से आके. तो जब से आए यहाँ ही आए न्यू जर्सी में. क्या करते थे वहाँ पे इंडिया? इंडिया में आई सर्जरी किया. ओके. आँखों के डॉक्टर थे? आंखों के डॉक्टर. और इनसे आँखें कैसे मिली? आंखें लगा ली. क्या करें? So you've been here before him. Yes, since 1980. So डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और लेकिन घर पे नहीं बनाते. सही सुना. और आप नहीं खाती. आप इनकी पिटाई करती हैं जब ये खा गया? What? Do you beat him up when he eats non-vegetarian food? No. Do I look like I could be anybody else? तो आपकी पिटाई नहीं होती. अरे कभी कभार हो जाता. कभी कभार हो जाती है. देख लीजिए. He's telling me all your dirty dark secrets. ये खुला हमारा फ्रिज का पिटारा. ओके. बहुत सामान है, बहुत सामान है. ये क्या है? What is this? So, potatoes and chana. Okay, that's Gujarati. Gujarat. अरे very good. और ये क्या चीज़ है? The same thing. This is you with yogurt, without yogurt. With you. Very good, very good. Healthy, okay. Yes, very So do you really calorie count your food since No, he's a not doctor? really. Oh, good. Okay. Well, I was just presuming. Okay, they also have some bacha hua dal. What is that? This ma'am? is black beans. Black beans. Alrighty. I've already got a recipe in my mind with that. Great. We also see some leftovers here. Same. Okay, good. Okay, we'll do something with it. All right. And we do have something in this patila. What is this? Yogurt. You make your own yogurt? Of course. Oh, nice. You remind me of my mother. I have not seen many households in the US which make their own yogurt. We have some leftover bread which we are going to use. Okay, we also have some Dal. leftover dal. May I smell it if you? Please. Okay. हर घर के फ्रिज में से उनकी फैमिली की वैल्यूज, उनके रहन सहन, हर चीज के बारे में पता लगता है. तो इनकी दाल, वाओ, डू यू पुट लेमन एंड गार्लिक इन इट? Yes. आई कैन स्मेल लेमन एंड गार्लिक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. व्हाट इज दिस? ये इंटरेस्टिंग सा है. पास्ता है, क्या है? Yeah. Well, eggplant. Eggplant, like a parmesan? Yes. Except no parmesan. Okay. Oh. No cheese. All right, eggplant parmesan. What about some vegetables? We have some leftover vegetables. We'll use broccoli. Broccoli. Okay. Broccoli is very good for you kids. We have carrots. So yeah, we can use that too. But I think for now, broccoli is okay. What else? Do you have any? Oh wow, That's that looks like a nice salsa. Is it branded or is it no, you made it? No, this is onion and pepper. You made it. We just mix it. Yeah, the paste.
Onion and garlic. Garlic and pepper. Garlic and pepper. Okay, I'll use that. That's a leftover also, or you use it in your No, cooking? we use it in the cooking. Oh, So great, it's all great, ready. great. So no chopping of garlic and perfect. और मुझे कुछ यहाँ पे interesting दिख रहा है. ये है tortilla. So tortilla means Mexican. perfect. All right, I think we are done with this one. Now let's revise what we have. We have tortillas. We have some homemade garlic and chili paste. We have leftover dal. We have some leftover potato and chana ka sabzi. We have some dahi. Tell me one thing. How do you get this dahi? It's really getting me going and thinking. Where do you get the starter? Well, we had it for a long time. So it's a starter being used for months and years and stuff. तो हमारे घर में मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरी मम्मी मुझे बोलती थी जाओ बिमला आंटी के घर जाओ और थोड़ा खट्टा लेके आओ. And I still remember running across the street and getting a little khatta for that, and that's a culture in India, I guess. But it's changing now. I think my mom doesn't use that khatta anymore. She buys it, but hats off to Mrs. Patel, who in America is making her own yogurt. Great. And we have black beans, which they also have canned black beans, but we are not concerned with that. We would love to use their leftovers. And they have some save. I have some really crazy idea with this. Alright, so मेरे दिमाग में अब इस ब्यूटीफुल फैमिली के लिए कुछ चीजें तो पक रही हैं, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा. I think I'm going to take a small break and I will be back on this beautiful show called Kawan Kitchen Mate. वेलकम बैक टू कवान किचन मेट. जब आप लोग अपनी ब्रेक पर थे मैंने पटेल फैमिली को लगा रखा था काम पर, और ये देखिए इन्होंने किया है पूरा मीजा प्लास. अब ये मीजा प्लास क्या चीज होती है? मीजा प्लास का मतलब है पुटिंग इन प्लेस. इट्स अ फ्रेंच एक्सप्रेशन. जब आप लोग ब्रेक पर थे इन्होंने करी खूब सारी चॉपिंग, खूब सारी ओपनिंग, और ये खूब सारा सामान हमारे सामने लाके रख दिया गया है. और अब मेरा काम है इन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो इनके फ्रिज से निकले हैं एक खूबसूरत मील बनाना. याद रखिए मैंने बहुत सारी चीजें यूज करनी है जो इनकी पुरानी चीजें हैं, जो इन्होंने परसों तरसों पिछले हफ्ते भी बनाई होंगी, जो मैं आज यूज करूंगा. बिफोर आई डू दैट, टच डाउन. ग्रेट. सो आज का मेन्यू क्या है? हम बना रहे हैं 3 चीजें. पहली चीज क्या देख रहे हैं आप? पुरानी दाल. ये देख रहे हैं पुरानी सेव. थोड़ा सा लिया मैंने घी, थोड़ी सी ली कैबेज, मशरूम्स भी हैं. और इससे बनेगा क्या? इससे बनेगी दाल की चॉप सुए. आते हैं सेकंड डिश पे. ये क्या था अगर आपको याद हो? ये थे इनके आलू और चने की सब्जी जो मैंने थोड़ी मैश कर दी है. उसके साथ मैंने यहाँ पे रखा है थोड़ा मैदा, थोड़ा बीटन एग, और ये बड़े कमाल की चीज है, इनके पास एक पुरानी नॉट टू स्टेल एक गार्लिक ब्रेड थी जो मुझे दिख गई. मैंने उसको गार्लिक ब्रेड को ऐसे एक फूड प्रोसेसर में डाला, ऐसे उसके मैंने क्रम्स बना दिए. तो इस प्रकार मैंने ये गार्लिक ब्रेड क्रम्स बनाए फ्रॉम ओल्ड स्टेल गार्लिक ब्रेड. अब आते हैं इस स्टेशन पर. यहां पर है हमारे पास टोर्टिया, यहां पर है हमारे पास पुराने ब्लैक बीन्स. इन्होंने फ्रीज करके रखे हुए थे ब्लैक बीन्स जो इन्होंने गार्लिक, अनियन और किसी अलग तरह के तड़के के साथ बनाए हुए थे. उनको मैंने डीफ्रॉस्ट किया. मैंने ली थोड़ी टोमेटो पेस्ट, थोड़ा सा चीज, और इनकी पुरानी क्या था ये मैम? गार्लिक एंड पेपर चटनी, विच इज रॉ. Yes. ओके, तो रॉ चटनी जो है इन्होंने बनाई हुई थी. अब आप शुरू करेंगे इससे. ये लीजिए और इसको चॉप कीजिए. हम बनाने जा रहे हैं चॉप सुए. तो पहले हमने लिया देसी घी. They don't use butter for cooking, they prefer desi ghee, so I'm using desi ghee. Am I correct? Yes. Okay. ये लिया हमने देसी घी. ये लिया मैंने इनका लेफ्ट ओवर गार्लिक पेस्ट. अब हमने इसमें डालनी है सब्जियां. पहले हम डालते हैं मशरूम. I think now this is a good time to add the cabbage. तो मैंने अपनी सब्जी को ढक दिया है. ये मशरूम्स और कैबेज इसमें पक रहे हैं. I think मेरा दिल कर रहा है थोड़ा बच्चों के साथ कुछ बॉल्स के साथ खेला जाए. Come on, soccer player, I got some work for you.
अब हम बनाएंगे अपनी सेकंड डिश जो है अरनचीनी। अरनचीनी होते हैं बचे हुए रिजोटो के बॉल्स, फ्राइड क्रोकेट्स, बट हम लोग यहाँ पे बचे हुए सब्जी की अरनचीनी बना रहे हैं जो आलू और चने की सब्जी थी। इसके अंदर हमने थोड़ा सा चीज मिक्स कर देना है because risotto has cheese and rice, so it's for her. You want to mix this for me? Come on, faster. Yes, nicely. And then you have to make some balls out of it. I'll make one ball. That's good. So we mix it nicely. And see, take something like this. Please take. Yeah, and make a ball. There you go. तो हमने एक बॉल ली। ब्रेडिंग के अंदर आपको ब्रेडिंग स्टेशन बनाना होता है। ब्रेडिंग स्टेशन के होते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला इंग्रेडिएंट है मैदा, रेगुलर ऑल पर्पस फ्लावर, कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरा है बीटन एग, मैंने 2 अंडे तोड़े, इसमें थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और तीसरा है ब्रेड क्रम्स। सो यू वांट टू हेल्प मी? Sure. So we just do this. Okay. Not too much flour. Right. So you do that. This process is called dredging. Dip it in egg. Not too much, not for too long. और ये तैयार हो गया आपका लड्डू। लेकिन ये लड्डू अभी कच्चा है, अभी नहीं खा सकते, इसको हमें डीप फ्राई करना है। There you go. तो इसको लेके जाते हैं कुकिंग रेंज पर। Alright. तो अब देखते हैं हमारी गोभी और हमारी बंद गोभी और हमारे मशरूम्स का क्या हाल है। देसी घी से बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है। तो what do you think about Americans? They have something against ghee. Haven't you heard this? I have. Well, I think they just have something against butter. Ghee is made out of butter, so anything fattening they're trying not to Right. eat. Okay. Now, because they're a little kind of scared, but I think I feel ghee is more healthy than butter. Let it come to a boil. In the meanwhile, I think our fryer Should be is ready. hot. Yeah. I can feel the heat, and I am going to fry my first arancini. इसमें है चीज, इसमें है मिसेस पटेल की बची हुई आलू और चने की सब्जी, इसमें है ब्रेड क्रम्स जो बची हुई गार्लिक ब्रेड से बनाए गए थे, जो कभी आई होगी किसी पिज्जा के साथ। और कितनी बढ़िया लग रही है ये arancini। arancini जो मैंने आपको बताया बचे हुए रिजोटो से बनती है। यहाँ पे रिजोटो नहीं मिला मुझे, यहाँ मुझे मिली आलू की सब्जी, और बची हुई आलू की सब्जी में मैंने चीज़ मिलाया और बना दी ये ब्यूटीफुल इटालियन एपेटाइजर। तो अब मैं यहाँ पे भी देख लूँ, यहाँ पे मेरी सॉस बन रही है जो बची हुई दाल के साथ है और कैबेज के साथ है। इसको सिर्फ गर्म करना है, उबाला आना है और वी आर डन। तो मैंने गैस बंद कर दिया है। ये डिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम नूडल्स के ऊपर सर्व करेंगे। arancini आई थिंक इज ऑल्सो रेडी। परफेक्ट कलर है ये, गोल्डन ब्राउन। It cannot be black. अब मेरी बारी आ गई है तीसरी और आखिरी डिश बनाने की। Come on, it's especially for you. So आप इधर आइए। So my Mexican footballer, what do you think I'm making? What is this? Tortilla, Perfect. What is this? Black Beans, corn, onions and chilies, and cheese. What do you think I'm making? quesadilla, So हमने डाला black bean. इस पे फिर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न। कितनी मिर्ची खाते हो बेटा? You eat a lot of chili? Little? not Poquito? a little. Okay. थोड़े हमने डाले प्याज for the crunch. And most important thing in a quesadilla is the queso, which is cheese. इस पे डाला हमने cheese. और अब हमने इसको कपड़े पहना दिए। ये देखिए। Now this is our quesadilla, but you can't have it just like that. It needs to be solid, little crispy. मैंने इस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया। आप चाहें तो पैन स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, बट दिस फैमिली इज वेरी हेल्दी एंड दे लाइक यूजिंग ऑलिव ऑयल, सो एज दे प्लीज। इसको हमने स्पैचुला से उठाया और इसको यहाँ पे धीमी आंच पे रखना है। डू नॉट गेट टू एक्साइटेड विद दिस, कीप इट ऑन अ वेरी लो फ्लेम। यू हैव टू शो योर पेशेंस। जब तक मेरा quesadilla यहाँ पक रहा है, मैं जाऊंगा और अपना डाइनिंग टेबल सजा के आऊंगा। आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव दिस ब्यूटीफुल मील विद दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो जाना मत, मैं हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद कवान किचन मेड पर।
वेलकम बैक टू कवान किचन में। दोस्तों, हम हैं पटेल फैमिली के साथ और आपने देखा है हमने ये बनाया है मील इनके बचे हुए खाने से। कुछ चीजें तो एक हफ्ता पुरानी भी थी मिसेस पटेल के फ्रिज में। ये था आरंचीनी जो कि बनता है पुराने राइस से इटालियन फूड में। हमने बनाया इनकी बची हुई आलू और चने की सब्जी से। कोई भी सब्जी जो आप मैश कर सकें इजीली, उससे आप ये चीज बना सकते हैं। ये था quesadilla। ये मैंने बनाया अपने फुटबॉलर बडी के लिए जिसको पसंद है मैक्सिकन फूड। राइट बडी? यस, ये हमने बनाया इनके बचे हुए बीन्स की सब्जी से। आप राजमा यूज करें, आप चिकन टिक्का यूज करें, कुछ भी यूज करें। ये मेरी फेवरेट डिश है आज की, जो मैंने 1 सेकंड के अंदर कंसेप्चुअलाइज की जब मैंने देखी ये सेव। मैंने देखा सेव, मैंने देखी कैबेज, मुझे याद आई चॉप सुई और मैंने बना दी इंडियन दाल चॉप सुई। बहुत बातें हो गई, अब टाइम है मेरे बैठने का और इस मील को एंजॉय करने का। तो आई एम गोना बी सर्व्ड बाय यू गाइस। लेट्स डिग इन। Here, let's have this. Okay. Well, that's not too different then. I'm sure about this one, but I'm sure they're going to love these two. Italian and Mexican. Yes. Right. दोस्तों, पेट पूजा हो गई है। अब पेट को शांति भी मिल गई है। लेकिन घर और बिजनेस की समृद्धि और शांति के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो है वास्तुशास्त्र। I have my friend Reva Kumar ji today, who is going to help this couple solve their problems of Vastu Shastra by giving her observations and solutions. Reva ji, over to you. आप इन्हें बताइए आपके क्या observations थे? जी हाँ पटेल साहब, मिसेस पटेल, बहुत ही अच्छा लगा आपके घर में मेरे को आकर। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि घर का जो डायरेक्शन है दैट इज़ वेरी गुड एंड इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। जब नॉर्थ की तरफ हमारा घर फेस करता है तो दैट मीन्स लॉस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। हर तरह की एनर्जी मिलती है, हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, फेम एंड नीड। एंड द शेप ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज स्क्वेयर शेप। जैसे ही घर के अंदर आने के बाद में इस घर में जब मैं किचन की तरफ आई हूँ तो देखा दैट इट इज़ क्वाइट विजिबल, दैट इज़ नॉट करेक्ट। और थोड़ा सा जो खाना बनाने का इट इज़ टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं डायरेक्शन हमारा थोड़ा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ना कि ईस्ट की तरफ। वाटर प्लेसमेंट है दैट इज़ टुवर्ड्स ईस्ट। अगर वो नॉर्थ की तरफ होता तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ईस्ट की तरफ भी है तो भी चल सकता है। उसके साथ ही अगर हम कुकिंग स्टोव की डायगनली लेते हैं, बिल्कुल सामने आपके नॉर्थ ईस्ट की वॉल आ रही है। जब नॉर्थ ईस्ट की वॉल टुवर्ड्स ईस्ट है, वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है, तो उसमें मेरी आपसे ये एडवाइस है कि इस किचन से पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं फायर एलिमेंट को बैलेंस करके। फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जो आपका कुकिंग स्टोव है, बिल्कुल जस्ट अराउंड यू कैन हॉरिजॉन्टली यू कैन ड्रॉ ओनली येलो 3 lines. So I hope you guys will try to follow to get more and more positive energy in your life. Thank you. Absolutely, thank you. So दोस्तों, आपने देखा कितना मजा आया इस फैमिली के साथ। हमने इनके फ्रिज में से चीजें निकाल कर खाना बनाया, खाना एंजॉय किया। रेवा जी ने कुछ एक्सपर्ट एडवाइस दी। What a beautiful time. If you want कि हम आपके घर भी ऐसे ही आएं तो आप अप्लाई कर सकते हैं at www.kawankitchenmade.com। मैं हूं कुणाल, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते इसी समय। खुशामदीद। Well, I never thought you could take something Indian and make it into Chinese. That was very interesting. And with the save that we used for the noodles, that I never would have thought that. And I love eggs, so having the little eggs on top, that was really great too. And it just the entire combination, it just tasted good. Because the kids don't want Indian food, but that's our culture. That's what we eat. So now at least I can make the Indian food a little bit. Put a twist on it and make it a little different, and they can have Indian Italian. So many different cultures, different experiences, different foods, so many different ideas, and see what's in their fridge and see what he comes up with. That will open up new horizon, that okay, we have more option. If you can keep your eyes open and mind open, I guess you can create it. So you can think like, okay, now what you want to make it differently rather than just eating the same cold stuff. I'm hoping that everybody else gets the idea too.